Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the basic of basic spreadsheet. We have to just do the smart class also, like a practical. Each and everything we have to just see with the practical things. मैंने हर चीज़ें practically बता दी थी, तो आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए. So today we will discuss about the presentation software. You all know about the presentation, Microsoft Office presentation, your PowerPoint. You all know about that. So into the Open Office Writer, there is a presentation software and the name is Impress. सो इसमें क्या होता है, इसका नाम होता है इम्प्रेस. प्रेजेंटेशन जो हम लोग इसमें बनाते हैं, एंड द प्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा with the audio visual technology. You all know about that. Great person said that a picture is worth 1,000 words. That means एक पिक्चर जो है बहुत सारे वर्ड्स को बोल सकता है. इस पिक्चर से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है. वी ऑल नो अबाउट दैट कि बस पिक्चर देखते हैं और उसमें उससे क्या चीज़ें निकल के आती है, वो पिक्चर कहना क्या चाहता है वो हम आसानी से समझ जाते हैं. बहुत सारे साइंस हैं, सिंबल्स हैं, देखते हो कि एक बार दिखता है उसका मतलब पता चल जाता है, वो इसका मतलब ये है. तो अ पिक्चर इट्स अ वर्ड. पिक्चर अगर कोई भी है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड को. So into the Impress we have to just create the presentation. We have to just create the audio visual texting with the graphical format. ग्राफिकल फॉर्मेट के साथ साथ हमें प्रेजेंटेशन बनाना होता है. एंड यू ऑल नो अबाउट दैट प्रेजेंटेशन इज like a document that is used to represent your views and ideas in front of the audience. अपने ऑडियंस के सामने में अपने ऑडियो विजुअल टेक्निक के साथ अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करना, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ अ presentation tool, that is the Impress. So first we have to just learn about the how to start the Impress, how to start the presentation software. So you all know about that each and every types of softwares open one by default process, that is go to the start button and then all program, and then there is a name of the software, the software name is Open Office. So you have to just click on the Open Office folder, and then there is a different types of options like Open Office Calc, Draw, database. So you have to just click on the Open Office Impress. Open Office Impress पे click करना है. Then the particular software, the presentation software will open into your screen. The another process, that is you have to just double click on the Open Office icon into the desktop, and then a platform will be appear. It contains the spreadsheet, writer, presentation. So you have to click on the presentation, then Windows dialog box appear, the presentation dialog box appear into your screen. So first we all we have to just learn about the some components of the Open Office Writer. Previous चीज़ें समझ में आ गई होंगी. So there is a title bar. We all know about that. Title bar contains the name of the document. मैंने पहले भी बता रखा है. Menu bar, it contains the different types of commands, like all the commands that are contained into the a menu bar. Menu bar has a different types of options like a file, edit, view, insert. So there is a different options, and all the options have a different types of tools. So all the formatting related tools that are contained into the menu bar also. So now there is a standard toolbar. So standard toolbar also contains the different types of tools that are seen into your screen. ये स्क्रीन पे दिखता भी है, ठीक है. So you have to just click on it and easy to use. Now there is a slide slide bar बोल सकते हो इसे, working space बोल सकते हो उसे. A white area, that is a working space. You have to just create the document into the workspace. Workspace is generally known about to creating समथिंग दैट इज़ अ वर्क स्पेस. जहाँ भी हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं वो वर्क स्पेस होता है. नाउ एबव ऑफ द वर्क स्पेस देयर इज़ अ स्लाइड व्यू बटन. सो देयर आर different टाइप्स ऑफ स्लाइड व्यू. वी ऑल नो अबाउट दैट. normal view, outline view, notes view, handout view, slide sorter view. So there are different types of view
So in the upper of the workspace there is a, this shows the view of the document, and the left side of the workspace there is a slide pan. लेफ्ट साइड जो वर्क स्पेस होता है उसके बगल में स्लाइड पैन होता है, लेफ्ट साइड में स्लाइड पैन होता है, एंड दैट स्लाइड पैन कंटेन्स द all the slides that are working into that particular document. इस डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्किंग स्लाइड्स होंगे, जितने भी स्लाइड्स पे आप काम कर रहे हो, वो सारे स्लाइड पैन में दिखेंगे, सारे स्लाइड पैन में शो होंगे। आप उसे स्क्रॉल भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मल्टीपल स्लाइड होगा तो आप उसे स्क्रॉल करके देख सकते हो, वहाँ से हम स्लाइड के ऑर्डर्स को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद होता है task pan. So into the right of the workspace there is a task pan, and that contains which types of slides added into the presentation. That means ki there is a different types of options of the slide, and their design, their predefined designs also. So you have to just click on it and then apply into your स्लाइड एरिया। सो स्लाइड एरिया या स्लाइड पैन में अगर हमें और भी स्लाइड को जोड़ने हैं तो देन वी हैव टू जस्ट यूज द टास्क पैन। होप सबके माइंड में क्लियर है। सो नाउ वी हैव टू जस्ट नो अबाउट द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, वी ऑल नो अबाउट दैट। A presentation is a combination of multiple slides, or it represents like a text, or the or you have to just use the audio visual technology into the presentation, and the representation of the data into the visual manner, that is a presentation in front of the audience. presentation क्या होता है, अपने डेटा को, अपने टेक्स्ट को विजुअलाइज वे में ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना, अपने व्यू, अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को विजुअलाइज वे में अपने ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ अ प्रेजेंटेशन, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो होप सबके माइंड में क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन क्या होता है, हम लोग न्यू प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि प्रेजेंटेशन आखिर क्रिएट कैसे होता है। सो फर्स्ट when we click on the impress or the presentation, then a dialog box appear, a pan, presentation pan will be appear into your screen. There is a two option, like empty presentation and from template. We all know about that. मैंने पहले ही बताया कैसे स्टार्ट करना है। जब हम स्टार्ट करेंगे या तो इम्प्रेस पे क्लिक करेंगे या तो प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देन एक पैन आएगा, एंड दैट पैन कंटेन्स द एम्प्टी प्रेजेंटेशन एंड द फ्रॉम टेम्पलेट। यानी कि एम्प्टी प्रेजेंटेशन मतलब कि आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है और वो कम्प्लीटली ब्लैंक रहेगा, आप उसे खुद से डिज़ाइन करोगे। बट अगर टेम्पलेट की बात करूँ तो टेम्पलेट दैट मीन्स इट हैज़ अ प्रीडिफाइंड फॉर्म ऑफ द स्लाइड दैट आर बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ अ ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर। ये ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद है। यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट ऑन इट एंड देन अप्लाई on that particular slide. But if you want to just create a new slide according to your mind, according to your formatting tools, then you have to just click on the empty presentation. empty presentation पे click कर देना है। जैसे empty presentation पे click करोगे वैसे ही क्या होगा, आप presentation पे click करते हैं next कर देना है। तो next कर देना है, तो उसके बाद next करने के बाद क्या आता है, एक पैन फिर से आएगा, ठीक है, and that pan contains the select slides and then there is a colors also. So there is a different types of options वहाँ पे आएंगे। so उसमें से आपको क्या करना है, अपने प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड चूज कर लेना है कि आपके जो प्रेजेंटेशन होगा उसका डिज़ाइन, जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा। अगर बैकग्राउंड चूज किया तो बैकग्राउंड का कलर कौन सा होगा, ठीक है, तो कलर कॉम्बिनेशन भी सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से जितने भी आएंगे, सेलेक्ट आउटपुट मीडियम भी सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम उसे नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करते ही फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, एंड दैट डायलॉग बॉक्स कंटेन्स सेलेक्ट लाइक अ स्लाइड ट्रांजिशन, their effect, their speed also, select the presentation type। presentation type हमारा by default या ऑटोमेटिक रहेगा। तो ऑटोमेटिक दैट मीन्स कि हमारा जो हर स्लाइड है वो ऑटोमेटिक रन करेगा, यानी हर टाइम ड्यूरेशन के बाद रन करेगा, या वो बाय डिफ़ॉल्ट हम जब सेट करेंगे तो उस कंडीशन पे रन करेगा। तो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे
क्योंकि अभी सब पे टाइमिंग सेट कर देने का मतलब है हर स्लाइड का अपना अपना एक डिफरेंट टाइमिंग होता है, तो ये हम यहाँ से इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। एंड देन वी हैव टू जस्ट चूज द स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। यहाँ पे हम जो भी इफेक्ट डालना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक कर देते हैं और वो इफेक्ट हमारे स्क्रीन पे यहाँ जो प्रीव्यू है प्रीव्यू पे हमें दिखने लगता है। नाउ वी हैव टू जस्ट सेट द स्पीड ऑल्सो, स्पीड भी हम लोग सेट कर सकते हैं। देयर इज़ अ स्लो, मीडियम, फास्ट। दैट मीन्स कि जो इफेक्ट होगा, जो इफेक्ट हमने अप्लाई कर रखा है उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, मीडियम होगी, फास्ट होगी। तो दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन इन द बॉटम ऑफ द विंडो, इन द राइट बॉटम साइड देयर इज़ अ क्रिएट ऑप्शन, सो यू हैव टू जस्ट क्रिएट, क्लिक टू द क्रिएट ऑप्शन। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो तुम्हारा स्टार्टिंग है प्रेजेंटेशन का, वो तुम्हारा वहाँ से लाइक क्रिएट हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएगा। एंड दैट डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टाइटल बार, मेनू बार, मैंने पहले बता रखा है। सो आई नो कि सबके समझ में क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। After opening the document, the presentation document, so it contains the slide pane, task pane, standard toolbar, menu bar. So there is a different types of options, like a window screen will appear into your screen. So the first slide, जो फर्स्ट स्लाइड सबसे पहले आएगा, दैट इज टाइटल स्लाइड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड। देर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट ऑप्शंस ऑल्सो into the like presentation software. So a layout क्या होता है, so layout is an organized set of elements using which a new slide can be created. That means slide layout क्या होता है, ये एक organized form होता है and that contains placeholders. ये जो slide layout होता है, ये लेआउट जो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स का लेआउट होता है, डिफरेंट टाइप्स का डिज़ाइन होता है स्लाइड का। सो इन दैट स्लाइड लेआउट कंटेन द प्लेस होल्डर्स, वो प्लेस होल्डर्स को कंटेंट कर रखा होता है और अपना एक डिज़ाइन के रूप में। दैट मीन्स कि बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, आप प्रैक्टिकल में दिखोगे, मैं दिखाऊंगा कि स्लाइड लेआउट में बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। उन सारे डिज़ाइंस को क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है कि हमें कौन सा डिज़ाइन चाहिए। सो वी हैव टू जस्ट सेट द लाइक, अगर हमें टाइटल सेट करना है तो टाइटल से रिलेटेड कौन सा लेआउट है, और अगर हमें कंटेंट लिखना है तो कंटेंट से रिलेटेड कौन सा लेआउट है। अगर हमें डिफ्रेंसिएशन लिखना है, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है दो चीज़ों के बीच में, क्योंकि यू ऑल नो अबाउट दैट कि इसमें जो भी चीज़ें लिखनी है वो प्लेस होल्डर पे लिखना है, स्लाइड लेआउट्स के थ्रू लिखना है। अगर लेआउट नहीं होगा तो हम लोग इस स्लाइड पे कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्किंग स्पेस पे अगर कोई प्लेस होल्डर या कोई टेक्स्ट बॉक्स या कोई शेप अगर ना हो तो इस पर लिखना पॉसिबल नहीं होता है। सो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट जनरली लेआउट को हम लोग लेते हैं, क्योंकि लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट राइटिंग प्रोसेस के लिए एक प्लेस होल्डर है, और उस प्लेस होल्डर में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को, अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। सो प्लेस होल्डर क्या होता है, अ हैश्ड लाइन दैट अपीयर्ड इनटू योर स्लाइड, दैट इज़ अ प्लेस होल्डर। जो देखते होगे डॉटेड या लाइनिंग टाइप का डॉट एक पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट बना हुआ होता है जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं, वही होता है प्लेस होल्डर। उसे हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। एंड दैट प्लेस होल्डर इज यूज टू राइट द टेक्स्ट इनटू योर स्लाइड। वो जो स्लाइड में प्लेस होल्डर है वो टेक्स्ट लिखने के काम आता है। सो अगर हमें अब हम बात करते हैं लेआउट की, सो देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट इनटू द जस्ट राइट साइड ऑफ द लाइक स्लाइड बार। स्लाइड तुम्हारा स्लाइड जो विंडो होता है, वर्क स्पेस जो होता है, जस्ट उसके राइट साइड में होता है लेआउट का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, या तुम्हें उसे शो करना पड़ता है। सो उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्लाइड के डिज़ाइंस होते हैं। सो यू हैव टू चूज़ अकॉर्डिंग टू योर लीड, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपने अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग वहाँ से अपने लेआउट्स को चूज़ कर लेना है। एंड जैसे ही तुम उस पर क्लिक करोगे लेआउट पे, तो वो जो लेआउट है वो तुम्हारे जो स्लाइड एरिया है, जो वर्क स्पेस है, वहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडिंग लेआउट एंड द टाइटल एंड द सब टाइटल। दैट मीन्स कि लेआउट हमें ऐड करना है। तो लेआउट हम कैसे ऐड करते हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। First, while we opening the document, opening the presentations window, then a presentation window, there is a three parts. In the left part, that is a slide pane. In the middle part, that is a workspace where we can write the text, and the right part,
that has a properties panel. When you activate the properties panel, that appear into the right side, and that properties panel contains all the related property. While you select something, then the relative properties is appeared into the right पैन ऑफ द लाइक वर्क स्पेस के राइट पैन में ये प्रॉपर्टीज़ पैनल में अपीयर होगा। अब उस प्रॉपर्टीज़ पैनल में क्या करना है, अब ये तभी अपीयर होगा जब हम लोग स्लाइड पैन से स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, या अदरवाइज हम लोग सारी चीज़ें जो हमारे स्लाइड में एक्टिवेटेड है हम उसे डीसेलेक्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है स्लाइड लेआउट हमारे राइट पैनल पे एक्टिवेट हो जाएगा। मैं वैसे इसे बताऊंगा, अभी चीज़ें थ्योरेटिकल समझ में आ जानी चाहिए, समझ लो, फिर मैं प्रैक्टिकली इसे समझाऊंगा। सो स्लाइड लेआउट में वहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, उस स्लाइड लेआउट्स होता है, उसमें से जो भी लेआउट्स तुम्हें पसंद है वो लेआउट्स पे क्लिक करोगे तो देन वो लेआउट जो है तुम्हारे स्क्रीन पे अप्लाई हो जाता है, तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाता है। सो दैट इज़ अ स्लाइड लेआउट ऑप्शन। And after that, placeholder, lots of placeholder according to your chosen, then there is a placeholder. So placeholder that is into your workspace area. So how to write the text into that particular slide pane? So click on that placeholder, वो जो placeholder आएगा उस पर click कर देना है। then easily you can write the text by the typing of the keyboard। अपने कीबोर्ड से टाइपिंग कर देना है, वो इजीली टेक्स्ट वहाँ पे इंटर होने लगेगा प्लेस होल्डर पे। बट माइंड इट कि अगर कोई सारे प्लेस होल्डर डिलीट कर दिए जाएं तो देन यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इनटू द लाइक वर्क स्पेस। इसे डिलीट करके भी देखना कि जब सारे प्लेस होल्डर सारे लेआउट्स जो अगर डिलीट कर दिए जाए तो क्या हम उस पर लिख सकते हैं, तो वी कैन नॉट राइट इनटू द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वी कैन नॉट राइट इनटू द इम्प्रेस। यहाँ पे हम लोग फिर से नहीं लिख सकते हैं। सो वी हैव टू जस्ट when we write something then we need to just प्लेस होल्डर और द लेआउट्स, हमें लेआउट्स और प्लेस होल्डर की ज़रूरत है। सो नाउ देयर इज़ अ टाइटल एंड add text. So when you select that layout, then the placeholder appear that contains a title on the or the content area। यहाँ पे अगर हम जनरली बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट की बात करें तो वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट में जनरली टाइटल और जो कंटेंट एरिया होता है वो डिस्प्ले रहता है। तो टाइटल का मतलब होता है व्हेन वी राइट समथिंग, व्हेन वी राइट एनी टॉपिक्स देन यू हैव टू जस्ट राइट द टाइटल्स ऑल्सो। जब हमें कोई चीज़ लिखना होता है, कोई चीज़ अगर हम कोई भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं तो उससे सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, टाइटल के बारे में लिखना पड़ता है, आखिर वो किस चीज़ का टाइटल है। एंड आफ्टर दैट वी राइट अबाउट द कंटेंट, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ भी करते हैं क्योंकि ये एक डिज़ाइनिंग पार्ट है, ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी है, हम टेक्स्ट को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ें ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगी, हर चीज़ें एक डिज़ाइनिंग के रूप में रिप्रेजेंट होगी। तो आई होप सबके समझ में आ रहा होगा। सो नाउ एडिंग अ न्यू स्लाइड, हम न्यू स्लाइड कैसे ऐड करते हैं। सो यू ऑल नो अबाउट दैट हाउ टू ऐड अ न्यू स्लाइड, आखिर सबको पता होना चाहिए। व्हेन न्यू स्लाइड और न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट एरिया बोल सकते हो, या न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट इंसर्ट टैब दैट इज इन अ मेनू बार। इंसर्ट मेनू बार पे हमें क्लिक करना है एंड दैट इंसर्ट मेनू बार कंटेन्स स्लाइड कमांड। वहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट में स्लाइड कमांड होगा। सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड कमांड। जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही क्या होगा, जो न्यू स्लाइड है वो तुम्हारे स्लाइड पैन में अपीयर हो जाएगा, स्लाइड पैन में जो नया स्लाइड है वो आ जाएगा। सो दैट इज़ process to add the new slide into your working area, new slide into your document. So I hope सबके माइंड में क्लियर है ये चीज़ें। दूसरा प्रोसेस है अपने स्लाइड पैन में जो वर्किंग एरिया होता है वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, फिर से स्लाइड का ऑप्शन आता है एंड देन क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। सो जैसे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप मेनू के साथ हमारे स्लाइड पैन में वो जो स्लाइड है अपीयर हो जाएगा। नाउ थर्ड प्रोसेस दैट इज क्लिक द स्लाइड आइकॉन इनटू द प्रेजेंटेशन टूल बार। प्रेजेंटेशन टूल बार में स्लाइड का आइकॉन बना हुआ होता है, वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो भी जो स्लाइड है वो हमारे वर्किंग एरिया में, हमारे वर्क स्पेस में आ जाएगा।
सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ स्लाइड लेआउट. स्लाइड लेआउट क्या होता है? वी ऑल नो अबाउट दैट. मैंने पिछली क्लास में बताया. लेआउट कंटेन्स द टाइटल एंड द title and the content area, and there are a different types of layouts that has a different types of design, and we have to just set on that particular layout according to our need. अपने need के अनुसार हम उसे सेट कर सकते हैं. अब कैसे सेट करेंगे? जैसे ही जो स्लाइड लेआउट है, ये लेआउट मैंने बताया कि राइट साइड में अपीयर होता है. ठीक है, तो इसे विजिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? व्यू में जाके टास्क पैन में जाएंगे तो वो जो टास्क पैन है हमारे राइट साइड में अपीयर हो जाता है. ठीक है, जैसे ही टास्क पैन अपीयर होगा, अब यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के लेआउट्स हैं. सब लोग देखेंगे, वैसे पिक्चर में दिख रहा होगा मल्टीपल टाइप्स के लेआउट हैं. एंड दैट आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस, दैट आर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक अ प्लेस होल्डर. सो इसका डिफरेंट यूज है. तो फर्स्ट वन दैट इज़ अ ब्लैंक साइड. पहला क्या होता है? ब्लैंक साइड होता है. दूसरा क्या होता है? टाइटल एंड सब टाइटल. दूसरे में क्या होता है? टाइटल और सब टाइटल होता है. देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स. यू ऑल नो अबाउट दैट. दिख रहा होगा सबको. टाइटल एंड कंटेंट होता है. एक टाइटल कंटेंट होता है. अगर डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे टाइटल और दो डिफ्रेंशिएशन के प्लेस होल्डर होते हैं. सिर्फ टाइटल लिखना है तो टाइटल होता है. सिर्फ सेंटर टेक्स्ट लिखना है तो सेंटर टेक्स्ट होता है. दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स. यहाँ बहुत सारे लेआउट्स हैं, तो अपने नीड के अनुसार आप उसे कर लोगे. सो यहाँ पे सारी चीज़ें सबके समझ में आ रही होगी. कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ लाइक एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन अ स्लाइड. एडिंग और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हम लोग कैसे करते हैं? टेक्स्ट को ऐड कैसे करते हैं? मैंने पहले भी बताया कि टेक्स्ट को ऐड कैसे करेंगे. सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट एक्टिवेट द प्लेस होल्डर वेयर यू राइट द टेक्स्ट. सबसे पहले जहाँ टेक्स्ट लिखना है तो उसके प्लेस होल्डर को एक्टिवेट करना होगा. सो यू हैव टू जस्ट एक्टिवेट द प्लेस होल्डर बाय द क्लिकिंग मेथड. सो क्लिक करने के बाद वो जो प्लेस होल्डर है वो क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा. जैसे ही प्लेस होल्डर एक्टिवेट हो जाता है तो दैन उसके बाद क्या करना है? उसके बाद डायरेक्टली कीबोर्ड से जो है जो भी चीज़ें लिखनी है, चाहे वो टाइटल लिखना है, चाहे वो सब टाइटल लिखना है, चाहे वो कंटेंट लिखना है, जिस भी अकॉर्डिंग से आपका प्लेस होल्डर होगा, उसके जिस भी अकॉर्डिंग से आपका लेआउट होगा, उसके अकॉर्डिंग प्लेस होल्डर पे क्लिक करके डायरेक्टली टेक्स्ट को लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज मूविंग एंड रिसाइजिंग text boxes or a placeholder that are appear into our like workspace area. तो वर्कस्पेस एरिया में जो आता है, जो टेक्स्ट बॉक्स या प्लेस होल्डर, जो भी प्लेस होल्डर हमारे वर्कस्पेस एरिया में आएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स टाइप का आता है. सो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग रिसाइज कैसे कर सकते हैं या मूव कैसे कर सकते हैं? सो देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड. When you click on the placeholder, then a boundary area will be appeared into your according to like a boundary area appeared into your placeholder. placeholder के पास जो क्या होगा, वो boundary area appear हो जाएगा. अब उस boundary area पे dragging method के थ्रू dragging method you all know about that कि dragging method क्या होता है. जब चारों साइड जो है बाउंड्री एरिया अपीयर हो जाएगा, तो जैसे ही आप उसके कॉर्नर पॉइंट पे या अपर पॉइंट पे या बॉटम पॉइंट पे या राइट बॉटम साइड या लेफ्ट बॉटम साइड, किसी भी पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए होंगे, तो उस पॉइंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको जिस साइड उसे लाइक रिसाइज करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उस साइड वाले पैन पे, उस साइड वाले कमांड पे आप उस साइड वाले पैन के पास आप जाओगे और वहाँ पे जैसे ही अपने माउस के कर्सर को रखोगे तो वो 2 हेडेड माउस बन जाएगा. जो माउस का पॉइंटर है वो 2 हेडेड बन जाएगा. एंड जैसे ही 2 हेडेड को फिर से तुम ड्रैग कर सकते हो, लाइक इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग वहाँ से कर सकते हैं. सो दिस इज द मेथड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज. बाय द मेथड ऑफ इंक्रीज एंड लाइक ड्रैगिंग मेथड, वी हैव टू जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द प्लेस होल्डर. एंड दैट हैंडल नेम इज रिसाइजर हैंडल. सो रिसाइजर, जो डबल हेडेड एरो मैंने बताया, उसे ही हम लोग रिसाइजर हैंडल बोलते हैं. सो रिसाइज हैंडल जब भी आएगा तो फिर वहाँ से ड्रैगिंग मेथड के थ्रू अपने उस प्लेस होल्डर को या अपने उस टेक्स्ट बॉक्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. या अदरवाइज शेप भी अगर आता है तो उस शेप को भी हम लोग इसी वे में, क्योंकि जैसे हम शेप को भी सेलेक्ट करते हैं तो यही बाउंड्री एरिया जो है वो अपीयर हो जाता है. दैट मीन्स कि वो सिलेक्शन पता चलता है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर शेप है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये सेलेक्ट हो गया. और सेलेक्ट करने के बाद वो बाउंड्री एरिया में जितने भी बाउंड्री एरिया एक्टिवेटेड हो जाते हैं
और पॉइंट पर सर्कल या रेक्टेंगुलर टाइप का एक बॉक्सेस बन जाएगा हर पॉइंट पे। आप उसे वहाँ से जैसे ही वहाँ पे माउस पॉइंटर रखोगे वहाँ पे रिसाइज हैंडल पैनल ये आइकॉन बन जाएगा, यानी पॉइंटर बन जाएगा। अब उसे आप आसानी से ड्रैग कर सकते हो, छोटा कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो। अब नाउ we discuss about the some formatting text into the text boxes. That means कि there is a different types of formatting tools and that contains to change the formatting style of the like a document or the placeholders also or the text also. So text के जो formatting features है उसे change करना हम लोग कैसे change करते हैं? So we all know about that. There is a general formatting features like font style, font size, bold, italic, underline. There is alignments also. So there is a different types of like font color, background color. So different types of options you can apply into your workspace, into your text. So like there is a font style, so you have to just choose the font style. There are different types of font styles. You have to just click on the drop down dialog box, drop down boxes into the font style, and then different types of lots of font styles appear into your screen, and you have to just choose according to your need. Then just beside the font style there is a like a size of the text, so you have to just increase or decrease the size of the text that are appear into the standard toolbar. You all know about that. So into the standard toolbar it contains the like a bold, italic and underline. So you have to just click the bold for the bold of the text, italic for the curvy of the text and underline that are underlined into the text. So ये जो जनरल फॉर्मेटिंग फीचर्स है ये हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं. देयर इज अ डिफरेंट सम अदर फॉर्मेटिंग फीचर्स लाइक alignments option. So there are 4 types of alignment. So that is a left alignment, right alignment, center alignment and justify alignment. So ये चारों alignment में से कुछ भी चूज कर सकते हो. If you want to just all the text is in center, then you can choose the center alignment, or the left, then you can choose the left alignment. And when you want to just right side, the text will be start from the right side, then you have to just click on the right alignment and then justify. When you click on the justify, all the text start from the left side and into the right side. ये left side से शुरू होगा and right side में end होगा, and that is like represent into the parallel way. वो एक parallel way में चलता है. So I hope सबके माइंड में क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंसर्टिंग इमेज. इंसर्ट इमेज, हम लोग इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं. सो फर्स्ट वाइल वी इंसर्टिंग द इमेज वी हैव टू जस्ट एक्टिवेट द ड्राइंग पैनल. सबसे पहले हमें ड्राइंग पैनल एक्टिवेट करना होता है. एंड लाइक नो ड्राइंग पैनल नहीं एक्टिवेट करना पड़ता है. इंसर्टिंग इमेज का मतलब होता है इमेज को इंसर्ट करना, यानी कि नए इमेज को हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं, नए इमेज को डाल सकते हैं. अब उस इमेज को डालने का बहुत सारा तरीका होता है, कैसे हम लोग इमेज डालते हैं. शेप्स भी डाल सकते हैं हम लोग, शेप्स के बारे में भी बताएंगे. शेप्स भी डाल सकते हैं, बट शेप्स डालने में क्या होता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, शेप पैनल एक्टिवेट होना चाहिए. अगर शेप पैनल एक्टिवेट नहीं होगा तो वहाँ से शेप हम लोग नहीं डाल सकते. जैसे ही शेप पैनल एक्टिवेट होता है, व्यू से जाके हम लोग शेप पैनल एक्टिवेट करेंगे, देन वो शेप पैनल क्या होगा, वो नीचे सबसे बॉटम साइड में अपीयर हो जाएगा. एंड दैट कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. वो शेप्स बहुत सारे शेप्स लिए हुए रहेगा. अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम लोग वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं. सो हम लोग देखते हैं अब कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, यानी कि कैसे हम लोग क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हैं, कैसे हम लोग पिक्चर इंसर्ट करते हैं. सो क्लिप आर्ट क्या होता है, अब चीज़ों को समझ लो. पिक्चर और क्लिप आर्ट. So picture that are into your into your hard disk, into your computer or a mobile memory, and the clip art that is by default memory into that particular software. ये सॉफ्टवेयर में by default memory होता है. and you can search different types of extra clip arts, extra that is it's a cartoon image. clip art को cartoon image भी बोल सकते हो. सो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे कुछ इमेज तो हमारे ऑलरेडी सिस्टम में हमारे जो इस सॉफ्टवेयर है उसमें मौजूद होता है. लेकिन अगर हम इसके बावजूद कुछ एक्स्ट्रा पिक्चर्स को चूज़ करना चाहते हैं, ये पिक्चर्स अगर यहाँ पे नहीं है और हमें और भी पिक्चर चूज करना होता है, तो जैन
वहाँ पे हम लोग इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर होती है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसे आप चेकआउट करोगे तो ये इंटरनेट से भी अगर इंटरनेट कनेक्टेड होता है तो वहाँ से भी पिक्चर को खोज के आपके स्क्रीन पे ला के दिखा सकता है। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप दैट इज क्लिक द न्यू स्लाइड बटन। हमारे पास न्यू स्लाइड बटन का ऑप्शन होता है, सो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन एंड देन लेआउट पैनल ऑफ टास्क पैन appeared the right side, so select the slide with clip art placeholder। यहाँ पे बहुत सारे मैंने बताया कि लेआउट्स होंगे, तो उसमें से उस लेआउट को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से क्लिप आर्ट का ऑप्शन दे रखा है, तो उस लेआउट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, वो लेआउट तुम्हारे स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। नाउ देयर इज अ टेक्स्ट एंड द टाइटल एंड द पिक्चर ऑल्सो। सो जैसे ही उस पिक्चर आइकॉन पे क्लिक करोगे, पिक्चर आइकॉन पे क्लिक करते ही जो क्लिप आर्ट का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन द इंसर्ट डॉट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्लेड वेयर यू कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड क्लिप आर्ट और द पिक्चर फाइल। यहाँ से अपने जो भी क्लिप आर्ट्स हैं, जो भी जो भी सेव्ड क्लिप आर्ट्स हैं या अनसेव्ड क्लिप आर्ट्स हैं, ठीक है, आप यहाँ से उसे डायरेक्टली देख सकते हो और पुट भी कर सकते हो। जो भी पिक्चर को सेलेक्ट करना है उस पिक्चर पे क्लिक कर दोगे और इंसर्ट कर दोगे या ओपन कर दोगे तो वो तुम्हारे उस वर्किंग एरिया पे, वर्क स्पेस पे आ जाएगा। नाउ इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम द गैलरी। सो हम लोग गैलरी से इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन द टूल मेनू एंड देयर इज अ गैलरी ऑप्शन। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द गैलरी ऑप्शन अ डायलॉग बॉक्स अपीयर and then choose the required path where the pictures saved into your hard disk or a computer or a mobile. Then click on that picture and then double click on that picture or click and insert the picture. So the picture will be inserted into your work space। अपने जो slide है या work space है वहाँ पे appear हो जाएगा। So I hope कि सबका clear है। Now the next one दैट इज़ अ क्रिएटिंग स्लाइड शो। अब हम लोग स्लाइड शो कैसे क्रिएट करते हैं और स्लाइड शो क्या होता है। सो स्लाइड शो इट्स एग्जीक्यूटेबल मोड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन का एग्जीक्यूटेबल मोड होता है एंड दैट कंटेन्स द एनिमेशन, ट्रांजिशन, म्यूजिक, साउंड्स एंड वीडियो। अब ये स्लाइड शो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले स्लाइड शो बनाने के लिए हमें एनिमेशन अप्लाई करना पड़ता है, ट्रांजिशन अप्लाई करना पड़ता है, म्यूजिक अप्लाई करना पड़ता है, साउंड अप्लाई करना पड़ता है, वीडियो अप्लाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अपने नीड के अनुसार हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, एक्टिवेट करनी पड़ती है। सो फर्स्ट एनिमेशन, दैट मीन्स कि एनिमेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टिल पिक्चर पे मूवमेंट क्रिएट कर देना, टेक्स्ट हो चाहे वो पिक्चर हो, उसको मूवमेंट में ला देना, दैट इज़ अ एनिमेशन। ट्रांजिशन की बात करें तो ट्रांजिशन आर द स्पेशल इफेक्ट दैट आर इंट्रोड्यूस्ड टू द स्लाइड। दैट मीन्स ट्रांजिशन इफेक्ट को यू कैन जस्ट से अबाउट द स्लाइड इफेक्ट ऑल्सो। अपने स्लाइड इफेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि स्लाइड किस वे में हमारे स्क्रीन पे आएगा ये ट्रांजिशन इफेक्ट डिक्लेयर करता है। ट्रांजिशन इफेक्ट में ही हम टाइम को भी डिक्लेयर करते हैं। दैट मीन्स कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच का टाइमिंग क्या होगा, ये यानी कि एक स्लाइड के आने और दूसरे स्लाइड के आने तक के बीच का टाइमिंग, यानी कि फर्स्ट स्लाइड कितने देर हमारे स्क्रीन पे रहेगा और कितने देर बाद दूसरा स्लाइड आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट में ही डिक्लेयर करते हैं। नाउ म्यूजिक, साउंड एंड वीडियो, यू कैन इंसर्ट द म्यूजिक, साउंड एंड वीडियो ऑल्सो। into the insert option there is a media option, so into the media option there is a music, sound and video option. So you have to just click on the when you want to just add the music, sounds and video, because when you create the presentation, we all know about that it has a it is a audio visual technique है। so we need to just insert the music and sounds and videos also। हमें ये म्यूजिक और वीडियो क्या होगा या साउंड्स को इंसर्ट करने की ज़रूरत है, तो हम लोग इसे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद हमारा स्लाइड शो प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, एडिंग ट्रांजिशन टू अ स्लाइड शो। हम लोग ट्रांजिशन कैसे ऐड करते हैं स्लाइड शो में, हम लोग इसके स्टेप को देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, इन अ स्लाइड और स्लाइड सॉर्टर व्यू सेलेक्ट द स्लाइड और द स्लाइड यू वांट टू ऐड ट्रांजिशन। सबसे पहले हमें जो भी स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना पड़ता है उस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे। एंड नाउ क्लिक टू द स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन दैट आर इनटू द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में भी स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन होता है, या गो टू द स्लाइड शो मेनू बार। स्लाइड शो मेनू में जाएंगे एंड देयर इज अ स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन, सो क्लिक ऑन द स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन। जैसे ही स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन पे क्लिक करोगे
देन क्या होगा, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन, देन द पैनल विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन। जो स्लाइड पैनल है वो अपीयर हो जाएगा राइट साइड में। मैंने बताया कि राइट साइड में स्लाइड पैनल एक्टिवेट हो जाएगा। then into the slide transition panel in the apply to select slide box, जो भी slide box हमें select करना है उसे हम choose कर लेंगे। now click the transition you want and then any other options you want। that means कि it has a different types of options like wipe up, wipe right, wipe left, and these options appeared the first time when you just opening the presentation, then it will be appeared into your screen also। ये जो जब आप सबसे पहले ओपन ऑफिस या सबसे पहले प्रेजेंटेशन ओपन करते हो तब भी ये ऑप्शन आया था। मैंने बता रखा है कि ये ऑप्शन उस समय भी आया था। अगर उस समय आप चूज कर लेते तो ये डायरेक्टली वहाँ से चूज हो जाता। मैंने वहाँ चूज नहीं किया था, ठीक है। तो अगर हम नहीं भी चूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आके चूज कर सकते हैं। तो टास्क पैन में क्या होगा, ये सारे स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट होंगे। वहाँ पे जो भी स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है वो उसे अप्लाई कर देना है। अगर वहाँ पे आप साउंड डालना चाहते हो तो साउंड डाल सकते हो। उसकी स्पीड को आपको फास्ट रखना है, मीडियम रखना है, स्लो रखना है, मैंने बताया था। तो यहाँ से आप स्लाइड के स्पीड को स्लो, फास्ट, मीडियम जैसा आपकी नीड है अपने अकॉर्डिंग उसे रख सकते हो। साउंड का ऑप्शन दैट मीन्स कि इट हैज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट साउंड ऑल्सो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट साउंड भी ऑप्शन होता है। अगर आप चाहो तो वहाँ से साउंड के ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो ये साउंड ऑप्शन चूज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे साउंड ऑप्शन आएंगे। सो उस साउंड ऑप्शन को चूज करने के बाद वो जो साउंड इफेक्ट है दैट मीन्स कि जब स्लाइड ट्रांजिट होगा, दैट मीन्स कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कन्वर्ट होगा, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जैसे ही जाएगा उस समय क्या होगा, उस समय ये जो साउंड है, ठीक है, ये साउंड क्रिएट होगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे कोई साउंड नहीं क्रिएट होगा। ऐसे अगर आपको साउंड डालना है तो आप बीच स्क्रीन में अपने साउंड को इंसर्ट से मीडिया में जाके वहाँ से साउंड डाल सकते हैं। बट यहाँ पे जो साउंड क्रिएट होगा ये जब भी स्लाइड चेंज होगा, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब भी आप जाएंगे तो उस समय जो स्लाइड होगा वो साउंड के साथ क्रिएट होगा। सो दीज आर द एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट। यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ ऑटोमेटिक भी है। देयर इज अ वन ऑप्शन ऑटोमेटिक आफ्टर 1 सेकेंड। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिक आफ्टर 1 सेकेंड दैट मीन्स कि जो स्लाइड होता है वो दो तरीके से चलता है। एक तो ऑटोमेटिक चलता है, एक मैनुअली चलता है। तो आप स्लाइड को अगर मैनुअली चलाना चाहते हो तो आप स्लाइड को मैनुअली, तब यहाँ पे हमें सेकेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम यहाँ इस डायलॉग, इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे यहाँ दो ऑप्शन है एडवांस स्लाइड में, ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिक आफ्टर 1 सेकेंड, या जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑन माउस क्लिक की दैट मीन्स कि स्लाइड का जो पेज है, स्लाइड जो है वो चेंज होगा आपके माउस क्लिक पे या कीबोर्ड के प्रेस पे, ठीक है। अदरवाइज आप चाहते हो कि नहीं इतने टाइम के बाद हमारा स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, ठीक है, इतने स्लाइड के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो। जैसे आप वीडियो ये देखते हो तो ये इस वीडियो में क्या होता है, स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज होता है। इसमें कोई ऐसा की प्रेस नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली स्लाइड का चेंजेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्लाइड कैसे चेंज हुआ, ऑटोमेटिकली चेंज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक सेट कर देंगे कि ये टाइमिंग कितनी है, कितने देर तक हमारा ये टाइमिंग चलेगा, यानी स्लाइड को कितने देर तक हमें प्रेजेंट करके रखना है। अब जब बात आती है प्रेजेंट की, तो जब भी हम इसमें साउंड इंसर्ट करते हैं, जितने देर साउंड चलेगा उतना देर हमारा ये स्लाइड चलेगा। तो अपने साउंड की टाइमिंग को भी देख के हम लोग अपने स्लाइड की टाइमिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक साउंड चलेगा तब तक तो स्लाइड चलना है, ठीक है, क्योंकि हम कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ें वहाँ पे आनी है। सो आई होप कि सबका क्लियर है। खैर, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट को कैसे एनिमेट करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग खैर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग ओवरव्यू इसका देख लें। सो एनिमेट टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को एनिमेशन, दैट मीन्स कि मूवमेंट क्रिएट कर देना, दैट मीन्स कि मूवमेंट ऐड करना। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस लाइक नॉर्मल व्यू में क्या होगा, क्लिक टू कमांड स्लाइड शो बटन, देयर इज़ अ कस्टम एनिमेशन, ठीक है। तो वहाँ क्या करना है, कमांड स्लाइड शो बटन है, वहाँ पे कस्टम एनिमेशन में क्लिक करना है। जब हम कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं क्या होगा, बहुत सारे एनिमेशन टूल्स हमारे पास आ जाएंगे। एंड राइट पैन में जो टास्क पैन आता है, मैंने राइट साइड में बताया टास्क पैन, वहाँ पे एक टास्क पैन अपीयर हो जाएगा। एंड दैट टास्क पैन कंटेन्स द
custom animation dialog box and there is a modify effect, there is a add option. यहाँ पे add option का effect आएगा. When you click on the add option, then a dialog box appear that has a different types of animation. We all know about that. There is a generally 4 types of animation: entrance, emphasis, exit, motion path. So ये 4 प्रकार के एनिमेशन होते हैं. एक और होता है मिसलेनियस इफेक्ट बोल सकते हो, ये एक्स्ट्रा होता है, बट जनरली हम लोग 4 प्रकार के एनिमेशन के बारे में जानते हैं: एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ. ये चारों होता है. तो एंट्रेंस का मतलब होता है कि जब कोई टेक्स्ट आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी जो स्लाइड है, कोई भी प्लेस होल्डर हमारे स्क्रीन पे आता है, तो वो इंट्रेंस होता है. एम्फेसिस का मतलब होता है अब उस पर कोई भी स्लाइड चेंजेस करने हैं, अब उस पर कोई भी फॉन्ट का कलर दर्शाना है, या देखते हो कभी कभी लाइक GIF जो इमेज बनता है वो क्या करते रहता है, फ्लैश करते रहता है. तो उस टाइप के टेक्स्ट के इफेक्ट को करना है तो ये सारे हम लोग एम्फेसिस से करते हैं. एग्जिट करना मतलब कि अगर कोई भी टेक्स्ट एग्जिट हो रहा है तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं. मतलब कि बहुत सारे कस्टम एनिमेशंस होते हैं. यहाँ से हम लोग जिसे भी अप्लाई करना है उसे डबल क्लिक कर देंगे या तो सिंगल क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, तो वो जो एनिमेशन इफेक्ट है वो हमारे उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड प्लेस होल्डर पे, सेलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा. तो आई होप कि सबका क्लियर है. यहाँ कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं, सबके समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी. तो आई होप कि जब भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो यू कैन जस्ट कॉल मी और टेक्स्ट मी. जब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कॉल और टेक्स्ट कर सकते हो. सो नाउ द चैप्टर ये फिनिश नहीं हुआ है, सॉरी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है. हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे की चीज़ें देखेंगे. So have a good day, stay home, stay safe.